Hello everybody, my name is Shweta Narula and we'll be discussing the topic stages of crime. So these are the 4 stages of crime: intention, preparation, attempt and accomplishment. So let's start with the basics कि crime actually में होता क्या है. Crime basically denotes every unlawful activity which is punishable by the state, जिसको state ने punishable declare कर दिया है. So there is no such specific definition to it. ये क्योंकि अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसीलिए हर कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक अपनी एक डेफिनेशन है इस टर्म की, अपने ही सेट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो उनकी कंट्री में पनिशेबल हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैट्यूट्स एंड रूल्स. So जो the body that deals with these offenses, the body of rules and statutes that deals with these offenses, these criminal offenses, and gives punishment for these offenses is known as criminal law. India में we have Indian Penal Code 1860 for these offenses and punishments, and the procedure which is used to enforce this criminal law, उसको हम बोलते हैं criminal procedure. India में we have CRPC, Criminal Procedure Code for this. Let's start the stages now. So first stage is intention. Intention सबसे पहली stage है and this is also known as the mental stage. यहाँ पे criminal जो है अपने एक mind में एक mental image बनाता है crime की, एक course decide करता है कि कैसे मैंने वो crime करना है. For example, if I want to kill somebody by poison, by giving them poisonous water or poisonous drink, so I'll make an image in my mind कि how should I mix that drink, from where will I purchase that poison, how will I give that poison to that person. तो वो सारा जो mental process है वो मेरी intention का part है, इस stage का part है, where I form an mental intention. ये stage usually punishable नहीं होता है because of course it is hard to prove कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है unless उन्होंने कोई physical action लिया हो उस intention को करने के लिए. Then comes the stage of preparation. Here the person makes necessary resources, makes those resources available to do the crime. For example, if मुझे किसी को मारना है by giving them poison, so I'll purchase the poison, I'll mix that poison in a glass. तो ये stage मेरी preparation की है, where I'm preparing to do a crime. I haven't done it yet, but मैं सिर्फ prepare कर रही हूँ उसके लिए. This stage is usually not punishable because prosecution ये prove नहीं कर पाता है. बहुत hard होता है prove करना कि actually इंसान एक crime करने के लिए किस चीज़ को prepare कर रहा था. वो नहीं prove होता because he or she hasn't taken any step to do that crime yet. वो सिर्फ prepare ही कर रहे थे. And this stage is punishable under certain sections. For example, preparation to wage war against the government. Section 122 IPC 1860 deal करता है इस punishment से. Then preparation to commit डकैती Section 399. Preparation for counterfeiting coins and government stamps. ये 3 sections ऐसे हैं, ये 3 situations, ये cases ऐसे हैं जहाँ पे preparation भी punishable होता है. Then comes the stage of attempt. अब ये थोड़ी tricky stage है. Here basically the person doesn't act to commit that crime. उस intention के साथ वो crime commit करने के लिए वो एक act करता है towards that crime. अगर वो act वो कर दे और उसको कोई ना रोके तो वो crime commit कर देगा. ये पूरा process होता है अगर attempt complete हो जाए तो. If the crime stops in between due to certain circumstances तो वो attempt पे ही रुक जाता है. अब इसको example से समझते हैं. For example, अगर मुझे किसी को मारना है by shooting them, मैं गन खरीदूंगी, मैं उस गन के अंदर एक बुलेट डालूंगी, I'll point that gun towards the person and I'll pull the trigger. So वो अगर बुलेट उस पर्सन को मिस कर दे या वो बुलेट उस पर्सन को लगे ना या फिर वो बुलेट निकले ही ना, फॉर एग्जाम्पल अगर गन से, तो वो जो मेरा क्राइम है वो अटेम्प्ट पे रुक जाएगा, वो अकम्प्लिश नहीं होगा बिकॉज दैट पर्सन हैजंट बीन किल्ड, पर मैंने अटेम्प्ट कर दिया उसको मारने का. सो ये स्टेज अटेम्प्ट की होती है. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑफेंस अगर अकम्प्लिश हो जाए या अटेम्प्ट हो, उन दोनों की सेम ही पनिशमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 124 और सेक्शन 124A ऑफ IPC, ये है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड सेडिशन. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पनिशमेंट अलग भी होती है. फॉर एग्जाम्पल मर्डर के केस में, अब अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 302 में आता है, बट अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कमीशन और अटेम्प्ट, मतलब कमीशन और अटेम्प्ट की अलग पनिशमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 302 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर, बट सेक्शन 307 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर. एंड ऐसा ही एक और है सेक्शन 309 विच डील्स विद
अटेम्प्ट टू सुसाइड, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब कुछ ऑफेंसेस आईपीसी में ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट के सेक्शंस नहीं हैं, तो उन सारे पनिशमेंट्स के से सेक्शन 511 डील करता है। ये बेसिकली उन सब ऑफेंसेस की अटेम्प्ट की पनिशमेंट होती है जो आईपीसी में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और इसकी पनिशमेंट जो है वो हाफ होती है फ्रॉम द एक्चुअल ऑफेंस। अब हम एक स्लाइड डिफरेंस देख लेते हैं प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में। प्रिपरेशन की स्टेज यूजुअली पनिशमेबल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि the person has the time to change the intention, because अभी उसने वो attempt, अभी उसने एक ऐसा एक्शन नहीं लिया है towards the commission of that crime, तो उसके पास अभी टाइम है कि वो अपना इंटेंशन चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ट्रिगर पुल नहीं किया है अभी तक, तो मैं अब भी अपनी उस गन को वापस रख सकती हूँ, अपना इंटेंशन चेंज कर सकती हूँ बी को मारने का। बट वंस आई हैव पुल्ड द ट्रिगर, वंस आई हैव अटेम्प्टेड टू किल दैट पर्सन, तो वहां मेरा इंटेंशन चेंज नहीं हो सकता। वहां आई ऑलरेडी डन समथिंग टुवर्ड्स दैट क्राइम विच कैन नॉट बी चेंज्ड और विच कैन नॉट बी टेकन बैक। तो ये स्टेज अटेम्प्ट की होती है जो कि यूजुअली पनिशेबल होती है। अब हम एक केस देखते हैं टू मेक दिस पार्ट ऑफ अटेम्प्ट अ लिटिल मोर क्लियर, विच इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह, 25 जुलाई 1989 का केस है ये। हियर द रिस्पोंडेंट्स वर लॉरी ड्राइवर्स, क्लीनर्स एंड कूली। वो कुछ फर्टिलाइजर्स बैग लेके जा रहे थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र। इंदौर से महाराष्ट्र वो लेके जा रहे थे उन बैग्स को, फर्टिलाइजर्स को इलीगली एक्सपोर्ट करने के लिए। अब उनको महाराष्ट्र बॉर्डर पे सेल्स टैक्स बैरियर वालों ने पकड़ा टू इंटरसेप्ट a few documents. So they were missing a permit which was issued by Fertilizers Order 1973. उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनको चार्ज किया गया था अंडर सेक्शन 511। अब उनके आर्गुमेंट्स क्या थे कि दैट दे वर नॉट एट द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। दे सेड कि अभी तक हम सिर्फ प्रिपरेशन के स्टेज पे ही हैं, वी वर स्टिल प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट दोज गुड्स। हमने अभी उनको अटेम्प्ट नहीं किया है प्रिपेयर करने का, अभी हम वहां उस बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हमें वो एक्सपोर्ट करने थे, तो अभी हमने सिर्फ प्रिपरेशन ही करी है। But they were not heard. They were convicted for this section 511 by saying कि उन्होंने attempt कर दिया है as they have already started to transport those goods by from the state of Madhya Pradesh to Maharashtra with the intention to export those goods illegally. अगर उनको sales tax barrier वालों ने ना पकड़ा होता तो उन्होंने अपना जो offense था वो accomplish कर दिया होता। So उन्होंने attempt कर दिया था यहाँ पे to export those goods illegally, इसलिए they were charged under this section. So I'll end my video here by a question. The question is, if A wanted to kill B, so he purchased those explosives to plant in her house. The explosives were stolen from his house the night before planting them to her house, to B's house. So can he be liable under an offense? Do comment in the comment section. And if you like the video, please like, share and comment and subscribe to the channel. Thank you.